And he told that I am covered with fine gold. Said the prince, you must take it off. The happy prince told that you know that my body is completely covered with my gold, and hence what you do, you better take out all the leaves of the gold and go and give it to the poor people. Now I remember well that the bird swallow has told that ये संजय कौन है? Who is संजय? हेलो संजय, who is संजय? कोई बात नहीं. That he told that I am flying in the entire city here and there, and I have found that rich people are there and they are enjoying their life. Uh, but there are also poor people, and poor children are there, and they are suffering a lot, that they are sleeping under the open sky, and it is so cold that they, let's say, I mean, embrace each other, they hug each other uh, at the town gate. And in the meantime, what happened? You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. Go and take out. First, take out the gold plates, the covering, the leaf out of more body, and give it to the poor. The living always think that the gold can make them happy. Everyone knows, you know, I know, and everybody knows that if I have a good amount of what? Gold, I will be rich. If I am rich, I will lead, or I can lead a very, let's say, happy life. Leaf after leaf of the fine gold, the Swallow picked up. Swallow knew it well that the happy prince is a very noble and kind man, and he wanted to help the poor. So he has started, let's say, peeling or taking out one after another leaf from his body, till the happy prince looked quite dull and angry. And when the entire outer covering of the gold was taken out, he became very much, let's say, ugly and awkward. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor. And after taking out, he took it to the, let's say, I mean, the poor people. And the children faces grew rosier when the leaf plates of the happy prince. आवाज जा रही है? समझ में आ रहा है ना? रिप्लाई मी विद चैट. चिड़िया को बोला गया हैप्पी प्रिंस के द्वारा कि हमारे बॉडी में बहुत सारा गोल्ड है, लीफ बाय लीफ प्लेटिंग किया हुआ है, इसको ले जाके गरीब को दे दो. तो गरीब बच्चे जो बहुत दिन से खाए नहीं हुए हैं, जो बारिश में, जो धूप में, जो ठंड में खुले आसमान के नीचे है, वहां तो वॉचमैन भी उसको क्या किया था, और वहां से भगा दिया था. तो वैसे में क्या करना है, जाके उन लोग को दो. और जैसा रुचि, आवाज जा रही है बेटा? रुचि, 9 डे रुचि, सुन रहे हो? हम्म. And he told that went to the poor children and handed it over. And when the children got the gold in the form of the leaf, they became very much happy. And the children's faces grew rosier, लाल हो गया रोज की तरह, खुशी से. उनको पता रह गया उनको गोल्ड मिल गया, और गोल्ड मिल गया, then I will be, let's say, sell it and lead a very happy and comfortable life, luxurious life. They laughed and played in the street. We have bread now. वो समझ गए? सबसे पहले तो खाना, आदमी जब भूखा है ना, सबसे पहले उसको खाना चाहिए. और अगर वो आ गया है सोना, तो इसको बदलेंगे, बेचेंगे, और पैसे सबसे पहले खाना लाएंगे. जो महीनों से भूखा है,
if he will get food and bread in the form of bread or anything, naturally he will become very much happy. These poor children, when they got the bread, I mean the leaf of the gold, they become happy and they started dancing in the street on the road. And they told that at last we vow apple to get the gold so that we can get the bread. Then the snow came, and after the snow came the frost. उसके बाद क्या हुआ ना, snowfall होता है, snowfall होने लगा, और उसके बाद frost गिरा. The streets looked as if they were made up of silver. Entire area, houses, homes, land, and roads were completely covered with gold and looked as if they were covered with silver. कौन संजय कौन है बता? Any problem? संजय? Who is Sanjay? Speak. क्या प्रॉब्लम है? बोलो. What's your name? किसी और का आईडी लगाया हो? बोलो. Any problem? कोई बात नहीं, नहीं बोलना है तो. ऋतिक, क्या दिक्कत है? बोलो. एवरीथिंग फाइन? ऋतिक, क्या दिक्कत है तुम लोग को? टेल मी. Hmm. And after that, what happened? The gold was given to the children. The children became very much happy and they started dancing and crying, crying. This was the cry of happiness. And they understood and announced that they are going to get the bread. And then what happened after some time, it started, let's say, in European countries, there is heavy snowfall. In our countries also, in Kashmir, in Simla, in Ladakh, and the entire area will be covered with, let's say, snow, and it looks as if they are covered with silver because it is white and shine like आवाज जा रही है ना? Shine like, let's say, I mean silver. Everybody went about in furs. जब ठंड पड़ती है तो लोग क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं फर का कपड़ा to protect themselves from the chill cold. And the little boys wore a scarlet cap and skated on the ice. Means from top to bottom, the hat, the cap, the gloves, the shoes, the socks, and the fur coat. The children also let's say wear, and they started doing skating on the road or anywhere which is full of snow. जहाँ भी बर्फ भर गया है ना, स्केटिंग करते हैं उसको. तुम जानते हो स्केटिंग क्या होता है? बर्फ पर किसी डिवाइस के से या चक्का से इधर उधर जाना स्केटिंग बोलते हैं. The street looked as if they were made up of silver. Everybody went about in fur. And the little boy, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कैसे उन लोग को ना फर का टोपी और ग्लव्स पहना देते हैं. The poor little swallow grew colder and colder. और ये तो छोटी सी चिड़िया, और यहाँ काफी ठंड पड़ रहा है, और ठंड में इसको ये ठंड वाला जगह में रहती नहीं है, तो इसको काफी ठंड लग रहा है. उसको तो जाना था इजिप्ट, ये इजिप्ट गई नहीं. But he would not leave the prince. He loved him too well. With the passage of time, the bird and the prince started, let's say, I mean, liking each other. And the bird developed affection and love. And that's why he decided, the swallow bird decided that now I will not go to Egypt. Whatever happen, whatever may happen, I will be here with the prince. He loved him too well. बहुत ज्यादा उससे क्या करती है? और लव करती है, तो वही सोच रही है कि अब हम इसके पास जाएंगे, यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से अब हम जाएंगे. साउंड गोइंग? टेल. इज साउंड गोइंग एंड यू आर लिसनिंग? ऑडियो विल वो क्लियर? प्रिय रंजन, ओके. लिख के क्यों नहीं भेजते भैया बच्चों? लिख के क्यों नहीं भेजता? सब ठीक है तो ठीक है, ठीक है ना? ओके.
Okay, 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 Priti. Hmm. Then what happened that अरे, hmm. And the small bird was there. She was unable to bear or tolerate the chill cold, and that's why slowly and slowly she was about to die. However, he had decided, the bird had decided that he will never go to Egypt, leaving the happy prince all alone. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping the wing. वो काफी फ्लटर कर रही है। जैसे हम लोग हाथ वगैरह ऐसे ऐसे करते हैं, रब करते हैं ना, तो बॉडी में थोड़ा गर्मी आती है सर्दियों के दिन में। तो इन लोग भी क्या कर रहा है, पिक्ड अप द क्रम्स आउट ऑफ द बेकर्स डोर। एक बेकर है जो बेक करता है बेकरी में, ठीक है, और उसके क्रम्स को रुक के क्रम्स को उठा उठा के खाया है, जो भी वहां पर बचा हुआ था। जबकि बेकर बेकर वहां पे, ओ, जब बेकर वहां नहीं था, वेट, एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। खुले आसमान के नीचे है, खूब पंखों को अपना फड़फड़ा रही है, फ्लैप कर रही है, फ्लटर कर रही है, ताकि उसके बॉडी में गर्मी रहे और वो सरवाइव कर सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई आफ्टर सम टाइम व्हेन डेथ कम्स ना। जैसे हम लोग को बीमार भी होना रहता है ना, तो बीमार होने के पहले थोड़ा सा बॉडी में अंदर से फीलिंग आ जाता है। इसको भी फीलिंग आ गया कि हम बीमार हैं और अब हम मरने जा रहे हैं। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर। बस उसमें इतनी ही शक्ति बची थी, उड़ के वो उसके कंधे पर बैठेगी और कुछ बात करेगा, चिड़िया जो है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई। हु ही? द बर्ड। He had just enough strength to fly up to the princess soldier once more. Goodbye, dear prince. और प्रिंस को बोला है जाके, my prince, goodbye. Goodbye बोलते हैं जब आखिरी बार मिलते हैं तो। He murmured, will you let me kiss your hand? और उससे पूछा, ऐसे तो वो ऐसे ही किस कर लेता चिड़िया, लेकिन एक परमिट ले रहा है, कर्सी है कोई काम करने के पहले, और वो चिड़िया से पूछ रहा, क्या हम आपके हैंड को किस कर सकते हैं? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। फिर हैप्पी प्रिंस रिप्लाई किया दैट आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू नो दैट यू आर गोइंग टू लेट्स से इजिप्ट। सेड द swallow, it is uh, little swallow, said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you। और दोनों में एक दोस्ती दोस्ती हो गई, एक प्यार हो गया। बोला कि हाथ पर क्या तुम हमको किस करोगे, लिप्स पे किस करो। अब तुम जा रहे हो हमेशा के लिए इजिप्ट। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. Then the swallow replied, the bird replied, that I am not going to go to Egypt. I am going to the house of death। कि अब तो हम मौत के घर में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? और नींद का दूसरा से, नींद में एक तरह से हम लोग अध मरे होते हैं, मरे हुए रहते हैं, बाहर में क्या हो रहा है नहीं है, कौन है, कुछ पता नहीं चलता है। तो डेथ में भी वैसे ही होता है। तो वो बोल रहा है कि अब तो हम भगवान के जा रहे हैं, मौत के घर जा रहे हैं, और मौत में कुछ पता नहीं चलता है। और डेथ का दूसरा नाम स्लीप है, इज ही नॉट? एंड he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet। और उसने उसको क्या किया, चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस को किस किया, और उसके बाद ही तुरंत उसकी डेथ हो गई। उसके पैरों के पास गिर कर वो मर पड़ी। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उसके बाद क्या हुआ कि क्यूरियस क्रैक हुआ स्टैचू के पास। स्टैचू में कहीं से क्रैक आया, लगता है कि अंदर में भी कुछ टूट गया, मर गया वो। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, लगता है अंदर में ना हैप्पी प्रिंस के कुछ कुछ टूट गया। The fact is that the leaden heart had snapped right in two। उसका हार्ट था, लीड का हार्ट था। हम लोग का तो मांस का हार्ट होता है जीवित रहते हुए, तो जीवित था नहीं। तो उसका जो लीड का हार्ट था वो क्रैक होकर दो पार्ट में कहीं पर दिखा रहा है कि हैप्पी प्रिंस भी अब एक तरह से डेड हो चुका है। उसने अपना काम कर दिया, दुनिया वालों को भला कर दिया। अपने सफायर से जो नीलम पहना था, जो पोखराज था, जो मानिक था, रूबी था आंखों में, जो टिल्ट में था, है ना, वो सब दे दिया। पूरा बॉडी भी वो निकट कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन एक खुशी है कि हमारे खत्म होने से कोई ना कोई किसी को फायदा हुआ है। एक बच्चे को जो बीमार था स्टार्टिंग में, फिर वो दूसरा जो राइटर था, इस तरह
इस तरह से उसने कितनों को मदद किया, उसके बाद उसका डेथ हो गया। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू इट सडनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्लो, बहुत भयंकर फ्रॉस्ट गिरा था, बर्फ गिरी थी, ठंडा ठंडा चारों तरफ, कोल्ड कंट्रीज है, और वहां ठंड में कोल्ड, जब फॉग और फ्रॉस्ट और तुम्हारा स्नोफॉल होता है ना, और ठंड बढ़ जाता है। तो इसको काफी तकलीफ हुआ, उसका हार्ट टूटा, और यह एक तरह से डेड हो गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, आगे बोल रहा है, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। हम लोग क्या मेयर होते हैं, पहले होते नहीं, लेकिन आजकल होने लगे हैं मेयर, जो हमारे समाज का सफाई का, पानी का, बिजली वगैरह का जो व्यवस्था करता है ना। शहर में नियम मेयर है, उनका चुनाव होता है। अभी गणेश पासवान है, वो घूम रहे थे टाउन में स्क्वायर के पास, जैसे जो कोई चौराहा होता है, गोलंबर, और अपने टाउन काउंसिलर्स को, जो पार्षद लोग होते हैं, जिनके मार्फत काम होता है, हर एरिया के वार्ड में बता रहता है, टाउन हम लोग का 45-46 वार्ड है यहाँ पर, और तुम्हारा भी घर किसी न किसी वार्ड में पड़ता है, तो उनके जो हेड होते हैं, जो सिलेक्ट के आते हैं, उसको काउंटर बोलते हैं, और सारे के हेड को बोलते हैं मेयर। तो मेयर अपने कुछ सहयोगियों के साथ, पार्षदों के साथ क्या कर रहे थे, वो घूम रहे थे। हम्म एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, और जब कॉलम के उधर से, जहां पिलर था ना, वो उधर से गुजर रहे थे, तो स्टैचू को देखे, डियर मी और शबी द हैप्पी प्रिंस लुक। रोज तो कुछ और रूप में देखते थे, और आज देख रहे हैं कि हैप्पी प्रिंस तो काफी शैबी लग रहा है, एंड शैबी मींस डर्टी, because the ruby has been taken, the sapphire has been taken, and the entire body which was covered with yellow gold, original gold was taken out. That's why it was looking awkward and shabby. Hmm. How shabby the happy prince look, he said. Hmm. My God. How shabby indeed, cried the town councillor. सारे लोग देखने लगे, और देख रहे हैं कि सही में he was looking very shabby and dirty, and who always agreed with the mayor, and they went up to look it. फिर ऊपर चढ़े उन लोग कि पास से देखे, वो तो काफी टॉल बिल्डिंग पे ऊपर में था ना, शहर के ऊपर चढ़ने लगे लोग देखने के लिए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, जो रूबी था उसके सोर्ड के हिल्ट में, मुट्ठा में, वो भी नहीं था, वो तो पहले ही दे दिया था सबसे पहले। हिज आईज आर ऑलरेडी गॉन, दोनों आंख थे, वो दिलवा दिया था। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, और जितना गोल्ड था वो भी अब नहीं है। Said the mayor, in fact, he is little better than a beggar. And the mayor told that the happy prince, it was very amazing and awesome and beautiful, and let's say, I mean, looking quite rich with the gold plates and the sapphire and the ruby, is just looking like a beggar. जैसे beggar कैसे गंदे गंदे संदे और फटे चूड़े कपड़े में रहते हैं, वैसे लग रहे हैं। ठीक है। Said the mayor, in fact, he is little better than a beggar. beggar से जरा सा ही अच्छा लग रहा है, और बाकी तो वो ऐसे ही है। लिटिल बेटर देन ए beggar, said the town councillor. उसके हाँ में हाँ लोग मिला रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि हाँ। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। फिर उन लोग को नजर पड़ा सैलो पे, जो कि सैलो जो चिड़िया था, वो उसके पैरों के पास गिर के मरा हुआ पड़ा था। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट द बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। और बोला कि फिर हम लोग को नियम बना देना चाहिए और अनाउंस करना चाहिए कि चिड़ियों को यहाँ पे आके मरना नहीं चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो क्लर्क होते हैं ना, जैसे प्रिंसिपल होते हैं, घूमते रहते हैं, ये काम करवाना है, ये काम, तो साथ में जो उनके असिस्टेंट रहते हैं, क्लर्क रहते हैं, नोट करते जाते हैं। तो मेयर के साथ भी क्लर्क था, वो क्लर्क लोग आगे क्या करते गए, लिखते चले गए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जा रहा है प्रिय रंजन, आवाज समझ रहे हो स्टोरी, लवांशु? ओके प्रिय रंजन, गुड। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और जब वो अभी तब भद्दा हो गया था, गंदा लग रहा था, ओके मैं, तो उसके मूर्ति को ही हटा दिया गया, एक तरह से गिरा दिया, गिरा क्या दिया, वहां से हटा दिया, क्योंकि वो शहर की खूबसूरती को खराब कर रहा है उस रूप में। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, ना वो ब्यूटीफुल है
और ना वो किसी को यूज है। कोई भी मूर्ति वगैरह प्रतिमा लगाते हैं ना किसी भी शहर में, पटना में, गया में और पूरे कंट्री में और वर्ल्ड में, तो वो जब अच्छा रहता है तब लगाया जा सकता है, और नहीं तो उसको हटाया गया। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उन्होंने बोला तो बहुत बदतर लग रहा है, इसको हटाया जाए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और फिर उसको पिघलाया जाता है ना, मेल्ट किया जाता है, भट्टी मिलेगा, पिघलाया गया। What a strange thing, said the observer of the workmen at the foundry, जो वहां पर भट्टी था, जो वहां पे उसके फाउंड्री में उन्होंने देखा जब मेल्ट कर रहे थे। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि सब कुछ मेल्ट हो गया लेकिन इसका हार्ट जो है ना वो मेल्ट नहीं हो पा रहा, नहीं हुआ। दिस ब्रोकन लीड हार्ट, और हार्ट कौन चीज का था? लीड, जो पीबी होता है ना केमिस्ट्री में। वी मस्ट थ्रो इट अवे, और बोले कि इसको फेंक दो, ये तो मेल्ट ही नहीं हो रहा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, तो उसका हार्ट और स्वेलो का बॉडी दोनों जहां पड़ा हुआ था, स्वेलो का बॉडी वहीं पर इसके हार्ट को फेंक दिया गया। Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels. और अपने देवदूत को, जो एक तरह से सर्वेंट होते हैं, मैसेंजर होते हैं, सर्वेंट नहीं मैसेंजर होते हैं भगवान के, उनको बोला गया। भगवान ने बोला कि दुनिया का जो सबसे दो प्यारा चीज है उसको आप लेके आइए। And the angel brought him the laden heart and the dead bird. और एंजल गए घूमने, और घूमते हुए देख रहे हैं कि यही दो चीज पड़ा हुआ था। एक लीड का हर्ट था जो कि हैप्पी प्रिंस का था, और वहीं पर चिड़िया का डेड बॉडी था। वो दोनों उठा के ले आए। इन लोग तो दोनों ही अच्छे ही थे, कितनों को भला किया। वी हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, जब व्हेन द both the things, the dead body of the bird and the lead heart of the happy prince was given to the god, provided to the god. The god said that yes, you are right in selecting the best thing of the bird. For in my garden of paradise this little bird shall sing. अब यहाँ तो भगवान के पास आ गया, इसको जीवित करेंगे भगवान अपने शक्ति से, अपने करिश्मा से, और बोले कि यही हमारे स्वर्ग में ये चिड़िया क्या करेगी, हमेशा के लिए चहकती रहेगी, गाना गाते रहेगी। फॉर एवर मोर इन एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, ताकि हैप्पी प्रिंस हमको क्या करते रहेगा, प्रेज करते रहेगा। This is the end of the story, and I think that you have understood, isn't it? दूसरा स्टोरी शुरू करते हैं, अभी बहुत समय है, बोलो तुम लोग रिप्लाई। विदिंग हाइट जस्ट उसके बगल में है, कल से वही चलेगा, कर दे शुरू। रिप्लाई रिप्लाई कर दे, ठीक है। समय क्यों वेस्ट करना है? नाउ कम इनटू द नेक्स्ट लेसन, वेदरिंग द हाइट्स, वेदरिंग द स्टॉर्म इन ईरा सामा। ये उड़ीसा में है, और आज से 20 साल पहले, करीब 25 साल, मैं कैंट में था, डीएवी में। तो उस समय बहुत भयंकर वहां साइक्लोन आया था, पहला बार। पूरा उड़ीसा तकरीबन, खास करके जो ग्रामीण इलाका है, वो बाढ़ में डूब गया था। उसी का यहाँ का एक तरह से ओरिजिनल स्टोरी है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया गया, बट इट इज लेट्स से इन सम वेज ओरिजिनल स्टोरी। नाउ सी, ये डेट भी दिया हुआ है 1990 में, ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irashama. There is a boy, his name is Prashant, and he has gone to, let's say, headquarters of Irashama. जैसे सिरघाटी है, डोभी है, वहां के लोग हेडक्वार्टर्स पड़ता है कहाँ, गया में, गया आते हैं। और उसके 7 साल पहले इसकी मदर का डेथ हो गया। मदर इज नो मोर ऑफ दिस वेरी बॉय हिराशामा, a small town in coastal उड़ीसा। कैसा है वो जगह है हिराशामा? कोस्टल इलाका में, समुद्र के किनारे एक छोटा सा टाउन है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, इसके गांव से दूर है, 18 किलोमीटर, अच्छा दूरी होता है। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, because Prashant, one of the friend of Prashant was living in that very town, coastal town, and that's why Prashant had gone there to meet his friend and to stay there.
In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. All of a sudden, what happened now? Clouds have started, let's say, collecting, gathering, and after some time, a very horrible and dangerous storm came. कैसे आंधी तूफान आता है? अचानक से बहुत भयंकर आंधी तूफान आ गए. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prasant had never witnessed before. ये तो बच्चा था. ये आज तक इस तरह का तूफान कोई भी नहीं देखे थे. उड़ीसा में वो पहली बार इस तरह का तूफान आया था और इतनी तेज गति से हवाएं चलने लगी ना कि वो हतप्रभ रह गया. Was badly shocked and surprised that it had come. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prasant had never witnessed before. अपने जीवन में इस तरह का तूफान वो कभी देखा ही नहीं था. Heavy and incessant rain filled the darkness. और काफी कस की बारिश होने लगी. अभी तो हम लोग के यहाँ बारिश भी नहीं हो रहा, नहीं तो स्कूल खुलता तुम्हारा. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted. जो पुराने पुराने 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के पेड़ थे ना, वो लेट से उखड़ने लगे. Uprooted and crashed to the earth. और धड़ाम धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर रहे हैं. आंधी तूफान में ऐसे ही होता है. पेड़ है, पोल है, जो कच्चे मकान है, वो गिर पड़ते हैं. स्क्रीम्स रेंट द एयर. और इतनी भयानक आंधी तूफान आई थी, इतना तेज बारिश था कि लोग ना चीखने चिल्लाने लगे डर से अपना जान बचाने के. आई होप माई साउंड इज गोइंग देयर एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. Sound okay, Mayank? Very good. Thank you. Reply Priya Ranjan and Mayank. Screams rent. Rent मतलब होता है गूंजना, चीखने की आवाज बच्चों के, बड़ों के जान बचाने के लिए, क्योंकि भयंकर आंधी तूफान और पानी था. As people and houses were swiftly washed away. घर मकान सब बहना शुरू हो गया. इतना भयंकर आंधी तूफान और बाढ़ आ गया. The angry water swirled into his friend's house. चारों तरफ पानी फैल रहा था. ये अपने जिस दोस्त के यहाँ था वहां भी पानी ना उसके घर में घुसना शुरू हो गया. तो वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट दिन यहाँ तक पानी आ गया, नीचे के फ्लोर पर. अगर फर्स्ट फ्लोर का है तो यहाँ तक. जिसका घर ऊपर नहीं था वो सारे लोग डूब के मर गए. ये सच्चाई है, ये स्टोरी नहीं. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of, my god, 350 किलोमीटर पर आवर. बहुत तेज. इतनी हवा में ना ट्रक उड़ जाएगा. और मकान जो पक्के मकान थे, जैसे आज कल का मकान है, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा घर है, इस तरह का मकान तो सरवाइव कर गए, जो ईंट का और सीमेंट का बना हुआ मकान था. बाकी सारे जो इतने कच्चे मकान थे, छप्पड़ के, मिट्टी वाले, वो सारे बह गए, उसके साथ लोग बह गए. और 350 किलोमीटर के स्पीड से हवा बहना शुरू हो गया, विच वाज लेट्स से वेरी मच डेंजरस एंड इंजूरियस. But the cold terror of the family grew with the crashing of the trees that had got uprooted and fallen on their house. और उस घर में भी त्रासदी आया. घर के अगल बगल एक बहुत विशाल वृक्ष था, वो टूटकर इनके मकान पे गिर गया. तो उस तरह के जब हेवी ट्री गिरते हैं ना, तो छत को, घर को, दीवार को डैमेज कर देते हैं, तोड़ देते हैं. समटाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात में ही गिर गया. जितना देर वो बर्दाश्त किया, पेड़ बर्दाश्त किया, उसके बाद गिर गया. डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स. उसके छत को भी, यहाँ भी कहीं भी हो जाता है. अगर हेवी ट्री गिर गया है तो छत को तोड़ देता है, फाड़ देता है, और उसके दीवार को भी गिरा देता है. The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. 2 दिन, लगभग 1.5 दिन तक लगातार पानी बरसते रहा. पानी जब बरसेगा तो बढ़ते जाएगा, धीरे 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 लेयर, पूरा घर मकान शहर डूबते चला चल गया. और ओशन का जो लेवल है पानी का, वो बढ़ते चला चल गया. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. ये अलग बात है, थोड़ा सा राहत मिला कि दूसरे दिन तक हवा का स्पीड थोड़ा सा कम हो गया. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the road. नीचे का ग्राउंड फ्लोर दिया, वो तो पूरा पानी से भर गया. फर्स्ट फ्लोर पे मकान नहीं था लेकिन छत था. तो प्रशांत के साथ साथ उसका जो दोस्त था, उसके पूरे फैमिली क्या कर गए, रिकॉर्डिंग नहीं हुई. उसके पूरा फैमिली जो है ना, वो उसी में ऊपर छत पे आ गए जान बचाने के लिए. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस. घर में तो पानी ऊपर बढ़ता चला चल गया.
Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. और प्रशांत